It's very important to learn idioms and use them in speaking activities, because when you want to speak very fluent English, you must have good quantity of idioms in your vocabulary. You must add these idioms in your vocabulary. Yes, my dear friends, today in this video we are going to talk about 5 idioms which are actually super important from the perspective of spoken English. Yes, this video is completely dedicated to idioms for spoken English, and after that we also will upload more videos regarding this. First of all, let me make you understand what are idioms. पहले आप ये समझ लीजिए idioms होते क्या है. Idioms कुछ ऐसे expressions होते हैं जिनकी fixed meaning होती हैं. उनको अगर ब्रेक करके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाए तो कुछ और मीनिंग मिलती है, बट उनकी मीनिंग उससे बहुत डिफरेंट होती है. यस माय डियर फ्रेंड्स, idioms आर सच एक्सप्रेशंस whose मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स वर्ड ऑफ इट. इंडिविजुअल उनके अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उनकी मीनिंग से वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है. एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भूल भुलैया होता है कि आप जो दिखता है वो होता नहीं है, राइट, और जो होता है वो दिखता ही नहीं है. ऑफ कोर्स यू विल सी दिस, यू विल सी दिस एग्जाम्पल. समझिए इस एग्जाम्पल को, जैसे टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. तो क्या इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि रोना, स्पिल्ट मिल्क मतलब फैल गया, दूध फैल गया तो रोने लग गए, क्या इसका मतलब ये है समहाउ? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग राइट नाउ. अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसकी मीनिंग कुछ ऐसी ही मिलेगी हमें, बट इसकी एग्जैक्टली में मीनिंग कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. मैं बताऊंगा अभी आपको क्या होता है इसकी मीनिंग, और आप भी चौंकेंगे. आई बिलीव आप भी चौंकेंगे. द सेकेंड इज a man of letters. A man of letters means the meaning is completely different, but हमें perspective से हम क्या सोच पा रहे होंगे? Man means human being, एक आदमी, और letters का मतलब जो हम जान पा रहे हैं अक्षर, whatever. तो इसका क्या कुछ बहुत अटपटा मीनिंग निकल रहा होगा, but hold on. You will understand the real meaning of these words, these idioms by the end of this video. So don't miss these 5 idioms, because I am here to make you understand this completely so that you can improve your spoken part of English. Well, my name is Santosha. You're watching this video on Learn English with Fun. So let's get started now. Alright guys, now let's see what are the meaning of these 5 idioms which I'm going to tell you in this today's video. The first idiom that we have is a bed of roses. A bed of roses. इसकी meaning अगर हम बेतुकी का निकाले तो हमें क्या मिलने वाला है? Bed and roses. That is completely wrong. इसके complete meaning निकल के आती है, that is easy work. इसे हम यूज करते हैं easy work के लिए. For example, if I have to say teaching is very easy for me. Teaching is very easy for me. It means teaching is a bed of roses for me. Please try to understand this. Teaching is very easy for me. Teaching is a bed of roses for me. It means we are talking about an action which is actually very easy for me. किसी ऐसे काम की आप बात कर दीजिए जो आपके लिए बहुत आसान है. For example, playing cricket is very easy for me. So playing cricket is a bed of roses for me. It means that is very easy and easy work. कोई एक ऐसा काम जो बहुत easy हो आपके लिए. So for that expression you can use a bed of roses. I hope that's very clear. You can use in your daily life activities. The second देखिए क्या है? A man of letters. मैंने आपसे यही पूछा था man of letters की मीनिंग क्या हो सकती है. तो हम जो बेतुकी का मतलब निकाल रहे थे, मैन आदमी और लेटर्स अक्षर, उससे कई गुना हटके है ये और बहुत डिफरेंट है उससे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट. अ मैन ऑफ लेटर्स का तब यूज करते हैं हम जब हम एक किसी इंसान की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जो बहुत ही ज्यादा विद्वान हो, राइट. A learned person. A learned person. A learned person. It means a man of letters का मतलब यहां पे हो गया एक कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा विद्वान हो, जो बहुत ज्यादा विद्वान हो. I have written that in Hindi as well, right? आसान काम में लिख देता हूं यहां पे, आसान काम. कोई एक ऐसा काम जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, उसके लिए आप यूज करेंगे अ बेड ऑफ रोजेस. नेक्स्ट हमारा अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि अ लर्नेड पर्सन, यानी कि एक कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा विद्वान हो, तो उसके लिए हम बोलेंगे ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, वॉज अ ग्रेट पर्सन, वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स. बहुत महान इंसान थे और एक बहुत विद्वान व्यक्ति भी थे वो, राइट. वॉज अ ग्रेट person and was a man of letters. Was a man of letters कि बहुत वो पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान इंसान थे वो. I hope that's very clear guys. नेक्स्ट हमारा है beat about the bush. beat about the bush का मतलब होता है जब आप बातों को घुमाते फिराते हैं.
नॉट टॉकिंग टू द पॉइंट, नॉट टॉकिंग टू द पॉइंट। जब बातों को आप घुमाते फिराते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे बीट अबाउट द बुश। यू विल से ए कम ऑन, डोंट बीट अबाउट द बुश, प्लीज कम टू द पॉइंट। बातों को घुमाओ मत, बातों को बिखेरो मत, बातों को घुमाओ मत, कम टू द पॉइंट यानी कि मुद्दे पे आओ, राइट। बीट अबाउट द बुश का मतलब हो गया आप यहाँ पे कि बातों को आप घुमाओ मत, राइट। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, जो आपकी बातों को घुमाए जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर बात को घुमाए जा रहे हैं, देन यू कैन से हे डोंट बीट अबाउट द बुश, प्लीज टॉक टू द पॉइंट, राइट। बीट अबाउट द बुश का मतलब यहाँ पे हो गया कोई ऐसी बात जो बहुत घुमा फिरा के कोई बोल रहा है, राइट। उसके लिए आप बोलेंगे हे डोंट बीट अबाउट द बुश, प्लीज टॉक टू द पॉइंट। ओके, नाउ यू कैन यूज देम। 24/7 का मतलब समझिए। 24/7 आपने कई जगह ऐसा सर्विस देखा भी होगा, 24/7 लिखा हुआ होता है। 24/7 का मतलब हो जाता है ये 24 यानी कि ये 24 आवर्स होते हैं, और 7 क्या होता है हमारा, वीक का डेज होता है, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमेशा अवेलेबल। ये आपने कहाँ देख सकते होंगे, कहाँ देखा होगा आपने ये 24/7? आपने देखा होगा ATM के बाहर, यू वुड हैव सीन इट आउट ऑफ अ हॉस्पिटल, एन इमरजेंसी वार्ड, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये 24/7 लिखा हुआ होता है। यहीं से एक ईडियम बन के आई है ये। 24/7 का मतलब होता है कि जो एक कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ईजिली अवेलेबल हो, या नहीं तो वो हमेशा ही अवेलेबल हो, राइट। यानी कि एक कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ईजिली या फिर हमेशा यानी कि ऑलवेज अवेलेबल हो, राइट। कोई एक ऐसी चीज जो बहुत आसानी से मिल जाए, यानी कि बहुत इजीली अवेलेबल हो और हमेशा अवेलेबल हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ओ कम ऑन, डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। इट मीन्स आई एम 24/7 रेडी फॉर यू, आई एम 24/7 रेडी फॉर यू, I'm 24/7 ready for you. I'm ready for you 24/7. It means I'm always ready to help you out. Whenever you get some problem, you can call me. I'm always ready. It means I'm ready 24/7 to help you out. मैं तुम्हें मदद करने के लिए 24/7 यानी कि मैं हमेशा तैयार हूँ, हमेशा अवेलेबल हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। I hope that's true and very clear. I hope it is clear. नेक्स्ट जो हमारा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही मैंने शुरुआत में भी पूछा था आपसे कि टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है। तो हम ऐसे इमेजिन कर रहे थे कि मिल्क का मतलब दूध है, स्पिल्ड का मतलब फैलना, और क्राई का मतलब रोना। तो कुछ हमें पता चला कि दूध फैल गया तो रोने लग गए, बट ऐसा नहीं है। इट्स कंप्लीटली एज आई टोल्ड यू राइट नाउ इन द स्टार्टिंग कि जो इडियम होते हैं वो भूल भुलैया टाइप का है, कि जिसकी मीनिंग तो कुछ और लग रही है बट उसका मीनिंग रियल में कुछ और हो जाता है, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी। इसकी मीनिंग होगी टू रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब समझ में आ रहा है, पछताना, राइट। जब आप किसी मैटर को लेके पछताते हैं तो आप बोलेंगे टू रिग्रेट। जो आप यूज करते हैं उसके जगह पर आप बोल सकते हैं टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे कि अगर आपको बोलना है किसी का आज का पेपर जो है एग्जाम बहुत बेकार चला गया, तो वो अभी सोच के परेशान है, अगला एग्जाम भी प्रिपेयर नहीं कर रहा है। सो यू विल सिंपली से ओ कम ऑन, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जस्ट गो एंड प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, राइट। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब कि अब जो हो गया उस पर पछताओ मत, जो हो गया उस पर मरो मत, तुम अब जाके नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, राइट। लाइक दिस यू कैन से। नेक्स्ट सेंटेंस एक और ले सकते हैं हम, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। बिल्कुल टाइम खराब है, वेस्ट ऑफ टाइम ही है ऐसे रोना, यानी कि रिग्रेट यानी पछतावा करना इन सभी बातों पे वेस्ट ऑफ टाइम है। जाओ और जाके अपना नेक्स्ट पेपर प्रिपेयर करो, गो एंड प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। I hope that's very clear, guys. So now you can use them in your speaking activities to sound like more native English speakers, and you also can feel that yes, you are getting some confidence to speak English. I hope these 5 idioms will be very clear, and if you enjoyed the session, please don't forget to subscribe and hit the bell icon. Now I hope everything and all these 5 idioms will be very clear, right? So try to get them used in your speaking activities. धीरे धीरे आप शुरू कर दीजिए अपने एक्टिविटीज में यूज करना। जहाँ पे आपको इजी वर्क यूज करना वहाँ पे आप एट बेड ऑफ रोजेज यूज कर लीजिए। देखिए कितना स्टैंडर्ड लगता है हमें। हमने बोला प्लेइंग क्रिकेट इज वेरी इजी फॉर मी, राइट। ड्राइंग इज वेरी इजी फॉर मी, ड्राइंग इज अ बेड ऑफ रोजेस फॉर मी। ड्राइंग मेरे लिए एक बेड ऑफ रोजेस जैसा आसान है, यानी कि बहुत आसान है मेरे लिए, राइट। सो लाइक दिस यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर स्पोकन इंग्लिश, और ताकि आप प्रैक्टिस करने के बाद जब आप किसी से बात करें तो आपको लगे कि यस आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द चैनल लर्न इंग्लिश विद फन। So I hope you all will be following my instructions which I have been telling you right now.
So now at the end, I wish you all the best to improve your spoken English journey very fast. Till the end, I would like to say thank you so much for watching this video till the end. Bye bye, take care.